Okay, so since we are here today at Reliance Digital, which is a one-stop destination for all your electronic needs, we have a few questions for you. Oh, I thought you were going to say we have some electronics for you. I was getting very excited. Maybe. You should do one of every department, just one. Sure. So She's not taking me seriously. Okay. when it comes to technology, what is it that you seek help on? Not so much actually, because I like to keep myself updated with most of the gadgets that come into the market. Not that I'm a tech geek or very knowledgeable at all, but I like to know what's new in, whether it's laptops or TVs or even a washing machine. It excites me a lot, and I tend to keep my house quite updated. Like I have some cool TVs and some cool gadgets in my house and some great sound systems, and also, yeah. No, I don't seek help apart from the one that I get from the internet. So Reliance Digital has tech experts, and their vision is to personalize technology. So what do you have to say for this? Wow, start with me. My name is Pariniti. They can customize and personalize some stuff for me. So I'm sure that you have a lot of friends in the industry. Amongst your popular Bollywood friends, who do you feel needs to be more tech savvy, and which product would you recommend for them? Who needs to be tech savvy? No, actually, all of us are quite updated. Honestly, genuinely, we are quite updated. I think my sister, Priyanka, is the one who is the most updated. Like, she always has the latest phones and the latest stuff. So if anything, she should give, maybe, like, she can give me something. I don't know. So in today's Asian technology has played a very vital role, and we've seen so many stars rise to fame by using the same. Technology has made the world a stage, and people can perform and rise to any level. If you were to use this medium, which talent of yours would you promote through this stage? It's not a secret that you're a fantastic singer, dancer, and you're obviously an extremely talented actress. Thank you. But I was actually going to say that, yeah, I would probably do something music related, only because you know and everybody knows now that I love to sing, and I love music, and I love to experiment with some, music stuff. So yeah, I think it is the digital age. All of us watch things on our phone more than we watch it on TV. I think we are more updated on our social media than we are from the newspaper. So I think, yeah, I would definitely use the digital platform of social media through my phone and do something in singing, maybe, I think. You have a very hectic lifestyle, which is not a secret. And in this lifestyle, technology plays a critical role. So what would you do if any device which is very close to you goes kaput? The most important device in my life is my portable charger, because if my phone dies, then my life comes to a standstill. I have no shame in saying that I'm very addicted to my phone and making phone calls and talking to people. So if my portable charger goes bust, oh my God, then, it's a problem. But I keep 3 portable chargers with me at all time. There's one in the car, and one in my bag, and then one with Ajay ji. And yeah, there are always portable chargers around me. So which is this one tech gadget that you're emotional about? Is it your phone? Yes, it is true. I'm very emotional, as you can see even now. I like to update my phones quite often, like even like twice a year, which may not be much, but I think it's quite a bit, because people don't really change their phones every time. But like, I'm one of those people who, like, before a phone is launched, I'll book it already, and then it'll come into my house, and then till the day of the launch, I don't open it. Like, I'm that person. So yeah, my phone. And if you had to go on an adventure, what gadgets would you carry with you? I go scuba diving quite a bit, and I have an amazing hottie underwater camera. It's not a GoPro. I know the whole world has a GoPro, but I have a really cool one, very sturdy action camera, I call it. So yeah, that's the one I use. It can go up to 200 meters. I don't go to 200 meters, but yeah, my underwater camera is the most important thing for me. My question to you is, have you ever first been to a Reliance Digital store, one? And if you have been here, how has been your experience?
Yes, I have been here. In fact, the last time I was here, I was with Sid. We were doing some stuff for Hasi To Fasi, and we had a chance to come to the store. I don't remember if it was this store or some other store, but somewhere in Bombay. And I love it. I told you, I love electronic stores. I love to check out new things that I may want to buy. So even now, I'm like very distracted. I'm looking at things over there and all. So yeah, it's been an amazing experience. I think the people over here are very knowledgeable about stuff, and they really help out customers, and that's the best thing when you need to know. There are so many products in the market, so it's great that they know. Hi Priyanka. Hi sir. Sorry परिणीति. प्रियंका. परिणीति, बहुत सारी लड़कियां अक्सर शॉपaholic होती हैं. ऐसा कुछ है कि आप शॉपaholic हैं और कुछ खास तरह की चीजें खरीदना पसंद करते हैं जब आप निकलते हैं? हाँ, white sneakers are my like big weakness. मेरे पास बहुत सारे sneakers हैं. I think maybe more than 200. I don't know. And I keep buying white sneakers. I get very excited. So yeah, that's my problem area. परिणीति, आपकी पिछली फिल्म मेरी प्यारी बिंदु, बहुत उसकी तारीफ हुई थी. थोड़ा हाँ. मेरी प्यारी बिंदु की बहुत तारीफ हुई थी. बहुत अलग किस्म की भी फिल्म थी. बहुत एक्साइटेड भी थे आप. लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा कलेक्शन नहीं किया. तो क्या उससे आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड या डिप्रेस हो गई थी, या कुछ बता पाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं. I think as an actor, you know, every film has a 50% chance of either working or not working. या तो हिट होगी या फ्लॉप होगी. तो जब वो काम नहीं करती, आपको कुछ टाइम के लिए लगता है अरे काश हो जाती, क्योंकि बहुत मेहनत जाती है, बहुत टाइम जाता है एक फिल्म बनाने में. बट यू रियली हैव टू मूव ऑन फ्रॉम इट एंड यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. सो आई एम वर्किंग ऑन गोलमाल राइट नाउ, जो अक्टूबर में रिलीज होगी, और मैं सिर्फ उस पर फोकस कर रही हूँ. अच्छा, गोलमाल के बारे में कुछ बता सकते हैं कि हाउ इज इट शेपिंग अप एंड ऑल? या इट्स वेरी एक्साइटिंग. मतलब इतनी बड़ी फिल्म पे, इतने बड़े प्रोजेक्ट पे मैं पहली बार काम कर रही हूँ. इतनी बड़ी स्टार कास्ट है. रोहित शेट्टी खुद इतने बड़े स्टार डायरेक्टर हैं. तो इट्स बिन अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. मैंने ऐसी फिल्म सेट पे पहले काम नहीं किया. एंड कॉमेडी एक बहुत अलग जॉनर है जो मुझे करने में बहुत मज़ा आ रहा है. बहुत अलग फिल्म है उनसे जो जिस तरह की फिल्में मैंने करी है. तो आई एम वेरी एक्साइटेड. फिंगर्स क्रॉस. दिवाली रिलीज़ है अक्टूबर में. एंड अभी बहुत शूटिंग बाकी है. हम लोग इनफैक्ट कल से दोबारा रिज्यूम कर रहे हैं. एंड फिर रिलीज़ होगी, फिर हम उसके बाद बात करेंगे. अच्छा, इससे हट के एक छोटा सा सवाल, मेरा आखिरी सवाल, कि आज से मिडनाइट से बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म लागू होने वाला है देश पे, जीएसटी, जो फिल्म इंडस्ट्री को भी इम्पैक्ट करेगा. तो आपकी क्या राय है जीएसटी के बारे में, और किस तरह से आपको लगता है, क्योंकि सिद्धार्थ रॉय कपूर जो है प्रोड्यूसर्स बॉडी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि ये इम्पैक्ट करेगा नेगेटिवली फिल्म इंडस्ट्री को, टिकट महंगे हो जाएंगे और वेरियस तरीके से इम्पैक्ट करेगा. आपको क्या लगता है कि क्या होगा? सिड ने क्या कहा मुझे एक्चुअली नहीं पता उन्होंने क्या कहा. लेकिन मैं एज एनी अदर सिटीजन, हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं. जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो हम चुपचाप फॉलो करते हैं, क्योंकि वो लोग ये कंट्री चला रहे हैं, हम लोग सिर्फ सिटीजन्स हैं. सो आई डोंट हैव एनी स्पेशल राय. जिस तरह से आप पूछ रहे हैं कि मेरे पे पर्सनली क्या नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, नथिंग. आई जस्ट होप कि जिन लोगों को ये नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, उसके बारे में गवर्नमेंट ने इनफ सोचा है और वो उसका ध्यान रखेंगे. आई होप ये जल्दी में एक्शन नहीं लिया गया. दैट्स ऑल. हाय परी. हाय. तो माय फेवरेट. थैंक यू. तो परी जी, आज तो मौका भी है, तो आज आप बता दीजिए कि आपके सेल फोन के वॉलपेपर पर किसकी फोटो रखती हैं आप? वाह. आओ दिखाओ मेरा सेल फोन किधर है. अजय जी को बुलाइए. अजय जी को बोलूं? बुलाइए उनको. अजय जी इस टाइम भाग गए घर. वो कंफ्यूज है. मैं वो इंसान हूँ जो सेल फोन के वॉलपेपर पे कुछ नहीं रखती. मैं एक प्लेन बैकग्राउंड का फोटो लेती हूँ, या तो ब्लैक या वाइट या रेड, और वो मेरा वॉलपेपर होता है, क्योंकि मुझे फ़ोन बहुत क्लीन रखने में मज़ा आता है. तो इनफैक्ट मेरे जो दोस्त हैं वो बहुत इरिटेट भी होते हैं कि ये क्या है, कोई फन से इतने अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ हैं, वो क्यों नहीं रखते हैं. बट आई लाइक इट वेरी क्लीन. मैं आइकन्स को भी एक पेज पे एक आइकन रखती हूँ. सब कुछ साफ़ होना चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल है मेरे फ़ोन के बारे में भी. लेकिन मैं तुम्हारा ज़रूर रखूँगी सून. तुम मुझे फ़ोटो भेजो. हाय परिणीति. हाय. हाय परिणीति, हाँ. गोलमाल आप कर रही हैं. रोहित शेट्टी की फिल्म में क्या आप एक्शन करती हुई भी नजर आएंगी, क्योंकि उनका खास एक्शन ही है,
तो क्या नहीं, एक्चुअली इतना ज़्यादा एक्शन इस फिल्म में नहीं है मेरे लिए. ऑफ कोर्स एक्शन है, लेकिन इट्स मोस्टली अ कॉमेडी फिल्म ऑफ कोर्स. लेकिन गोलमाल में जो फन एक्शन होता है वो भी है, लेकिन नॉट सो मच माइंड. ऑल्सो परिणीति जानना चाहूँगी, ऐसी खबरें हैं कि आप विकास बहल की फिल्म कर रही हैं विद ऋतिक रोशन. हाउ मच इज ट्रू दैट? हाउ मच? नॉट ट्रू. क्योंकि ऐसा हम लोग आजकल बांद्रा में कहीं पर भी घूमते हैं तो आप लोग सब हमारे दोस्त हमारे साथ साथ ही घर से निकलते हैं. आप लोगों को पता है ये बात. तो कभी हम अगर गलती से लंच पे भी चले जाते हैं तो ऐसा लगता है हम फिल्म साइन करके ही बाहर निकलें. तो ऐसा नहीं होता मेरे दोस्तों. तो नहीं, ऐसा नहीं है. आई जस्ट गॉन्ट टू मीट विकास फॉर सम अदर वर्क, बट आई बिलीव ही स्टार्टिंग हिज फिल्म एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट. परिणीति, हाय. एक फिल्म के लिए बहुत मेहनत करते हैं स्टार्स, प्रोडक्शन टीम, सभी लोग, लेकिन बाद में CBFC की चीज़ें होती हैं, कट कर दिया जाता है. जैसे हाल ही में शाहरुख की फिल्म हैरी मेट सेजल की जो इंटरकॉज वर्ड है उसके लिए 1 लाख वोट अगर आप करें तो वो फिल्म में या तो प्रोमो में या तो TV पे दिखाए जाएंगे, और वोट लोगों ने किए हैं 1 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं. क्या कहेंगी कि ऐसी चीज़ें जब होती है, एक वर्ड को लेकर फिल्म्स के प्रोमो में हटाने के लिए बात की जाती, पर्सनली आपकी क्या राय है? आई थिंक वी स्टार्टेड ओवर थिंकिंग थिंग्स. मुझे ऐसा लगता है कि ये सही बात है कि काफ़ी चीज़ें सोसाइटी को इम्पैक्ट करती हैं और फिल्म्स सोसाइटी को बहुत इम्पैक्ट करती हैं. और ये सही है कि फिल्म्स में अगर ऐसा कुछ हम दिखा रहे हैं जिससे बच्चों को या नॉर्मली हम सबको अगर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो डेफिनेटली फिल्म में नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिल्म्स एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं. लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है हम लोग ओवर थिंक कर रहे हैं. मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, बट आई फील दैट वी आर बिकमिंग ओवर स्ट्रिक्ट एंड समवेयर वी आर गोइंग अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ मेकिंग फिल्म्स. यू नो, फिल्म्स आर लार्जर देन लाइफ. उसमें हम ऐसी चीज़ें दिखाते हैं तो जो ज़िंदगी में नहीं होती है, लेकिन उसको हम जब ओवर थिंक करेंगे और बहुत कुछ काटने लगेंगे तो वो डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी. You know, and we should really allow that freedom of expression, you know. We should really allow filmmakers to use their imaginative minds to entertain you all only. So I feel I think we started overthinking. That's what I feel. With due respect, members of the media, last question होगा. नमस्ते लंदन भी आप कर रही हैं, ऐसी खबरें हैं. Oh wow. अक्षय के साथ. Amazing. कब? प्लीज़, मैं जो मेरी अगली फिल्म जो आने वाली है वो मैं अगले हफ्ते अनाउंस करने वाली हूँ. तो गोलमाल के अलावा दैट्स द वन फिल्म दैट आई एम डूइंग, एंड एनी अदर अनाउंसमेंट्स प्लीज लेट अस मेक. नॉट बांद्रा. ये जो बांद्रा का लोकल न्यूज़पेपर एक खुला है आजकल, ओ हो.